Hello children. Today we are going to take up class 7 English and the book is Honeycomb. We will start with the first chapter, The Three Questions by Leo Tolstoy. We will today do the first part of this story. One day the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक समय की बात है, एक राजा को ये ख्याल आया कि अगर वो ये तीन चीज़ जान लेते हैं तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे. और ये तीन चीज़ थे, तीन सवाल का जवाब. सही समय क्या है कोई भी कार्य को करने के लिए, किन लोगों को उनको सुनना चाहिए, किन लोगों की बातों को उनको सुनना चाहिए, और सबसे सही समय कौन सा था कोई भी काम करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो राजा ने क्या किया, उसने अपने राज्य के चारों ओर संदेश भिजवाया कि अगर कोई व्यक्ति इन तीन सवालों का जवाब दे देते हैं तो वो उन्हें ढेर सारा रुपया इनाम के तौर पर देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कई लोग राजा के दरबार में आए और वे अलग अलग उत्तर दिए उन तीन प्रश्नों का. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक नियमावली मतलब एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इसी तरह से वो सारे कार्य को सही समय पर कर पाएंगे. कुछ और लोगों ने कहा कि ये असंभव था पहले से जान लेना कि कोई भी कार्य करने का सही समय क्या था. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को जो गलत चीज़ें हैं उसको नहीं करना चाहिए. कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को मंत्रियों का एक समूह रखना चाहिए, एक ज्ञानी लोगों का एक समूह रखना चाहिए ताकि वो उन्हें बता पाए कि हर एक कार्य करने का सही समय क्या है. क्योंकि एक व्यक्ति को ये संभव नहीं है कि वो तय कर पाए कि कोई भी कार्य करने का सही समय क्या है. But then others said that there was something
which should be urgent. These things would not wait for the decision of the council. कुछ लोगों ने कहा कि लेकिन ऐसे भी तो चीज है, कुछ कार्य है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो डिसाइड करने में, मतलब जिसका निर्णय के लिए रुकना वो सही बात नहीं होगा. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कुछ लोगों ने कहा कि सही काम करने के लिए कि हमें भविष्य को जानना जरूरी है. And only magician could do that. और जो जादूगर होते हैं वही ये काम कर सकता है. The king therefore would have to go to the magician. तो इसीलिए राजा को एक magician के पास, एक जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ लोगों ने कहा कि द्वितीय प्रश्न के सवाल में कि सबसे ज्यादा जरूरी राजा के लिए है उनके मंत्रीगण. Others said the priest. कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, पुरोहित जो है वो सबसे जरूरी है. A few others choose the doctor. कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, जो डॉक्टर है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. And yet others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, सेना जो है, सैन्य दल, वो उनके लिए जरूरी है. To the third question, some said science. Others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, विज्ञान जरूरी है. कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं, युद्ध करना जरूरी है. और कुछ और व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पूजा पाठ करना ये जरूरी है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. राजा को जो उत्तर मिले वो बहुत ही अलग अलग थे और उससे राजा को संतुष्टि नहीं मिला और वो किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिए. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो राजा ने सोचा कि वो उस तपस्वी के पास जाए, उस ऋषि मुनि के पास जाए जिनको सभी लोग जानते हैं उनके विजडम के लिए, उनके ज्ञान के लिए. The hermit lived in a wood which he never left. वो एक वन में रहते थे जहां से वो कभी कहीं और नहीं जाते थे. He saw no one but simple people. वो किसी और से नहीं मिलते थे, केवल साधारण लोगों से ही वो मिलते थे. And so the king put on ordinary clothes. और इसलिए राजा अपने राज पोशाक को त्याग कर साधारण कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सन्यासी के कुटीर तक में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और वे अकेले ही आगे बढ़ गए. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. राजा जैसे ही तपस्वी के कुटीर के सामने आया तो वो देखे कि तपस्वी अपने कुटिया के सामने का जो जमीन थे उसको खोद रहे थे. डिगिंग, खोदना. He greeted the king and continued digging. तपस्वी जैसे ही राजा को देखा उन्होंने उनको ग्रीट किया, उनको वेलकम किया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया. The hermit was old and weak, and as he worked,
he breathed heavily. तपस्वी बूढ़े थे और कमजोर भी थे और काम करते वक्त वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, हाँफ जा रहे थे. The king went up to the hermit and said, राजा तपस्वी के पास गया और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा ने कहा कि तपस्वी मैं आपके पास आया हूं मेरे 3 प्रश्नों के जवाब के लिए. How can I learn to do the right thing at the right time? राजा ने पूछा कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि कौन सा समय सही है सही काम करने के लिए. Who are the people I need most? वे कौन लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है. And what affairs are the most important? और कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. The hermit listened to the king but did not speak. तपस्वी ने राजा की बात सुना लेकिन कोई भी बात जवाब नहीं दिया. He went on digging. वो अपने जमीन मिट्टी खोदने का काम जारी रखा. You are tired, said the king. राजा ने तपस्वी से कहा कि आप बहुत थक गए हैं. Let me take the spade and work in your place. मुझे अपना स्पेड मतलब कुदाल दे दीजिए और आप थोड़ा देर आराम कीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. तपस्वी ने राजा को धन्यवाद कहा और अपना कुदाल राजा के हाथ में दे दिया. Then he sat down on the ground. और उसके बाद वो जमीन पर बैठ गए आराम करने के लिए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब वो 2 क्यारी खोद लिए वो रुक गए और फिर से अपने प्रश्न दोहराए. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. जमीन से तपस्वी खड़े हो गए. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपना कुदाल मांगा और राजा से कहा कि आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए. But the king did not give him the spade and continued to dig. राजा ने लेकिन कुदाल वापस नहीं किया. वो अपना काम करता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा. सूरज जो है डूबने वाला था और अंधेरा छाने लगा था. अब उस वक्त राजा ने क्या किया? उन्होंने कुदाल को जमीन पर रखा और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. उन्होंने कहा कि ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास आया हूँ मेरे 3 सवालों का जवाब के लिए. अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते हैं तब आप मुझे कह दीजिए तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. और इतने में दिखाई पड़ा एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था. Students, we have just completed the first part of the lesson 1. Here are some word meanings which will be very useful to you to understand this first part and to increase your vocabulary. I have given you total 18 word meanings. If you need more, you can mail me at my mail address.